Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Today I'm going to start lecture number 20. This is the last lecture of the units and measurements, chapter number 2. And this physics belongs to class 11 NCERT physics. So basically, my dear kids, in the last lecture, at the lecture 19, I gave you homework uh, to find out the dimensions, dimensional formula, and dimensional equation of coefficient of viscosity. Okay, so these are the things, you know what, we are going to solve now here at the lecture number 20. After this, we are going to see dimensional analysis. Okay, so let us do this first. So the homework given at lecture number 19, fine, that is to find the dimensions, dimensional formula, and dimensional equation. Okay, of what? Of coefficient of viscosity. As we all know that viscosity is the property of liquid, but coefficient of viscosity is basically it is a constant, right? तो हम इसी को find करने वाले हैं through a formula. A formula is pertaining to coefficient of viscosity. वो क्या है? That formula is F is equals to minus eta factor capital A into delta V divided by delta L, where eta we know that coefficient of viscosity, F is capital F that symbolize force, and capital A is area, V is velocity, L is length. So इसको हमें subtraction को क्या करना है? We need to live this thing. ठीक है? So eta can be written as F into delta L. Delta, it doesn't matter. So simply we are going to consider the length. ठीक है? So then area as well as delta V can be written as V. So this ये जो implication sign है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं? Equalize. ठीक है? Now we know that the dimensional formula for force is mLT to the power minus 2, and the length is carrying dimensional formula L. So A is having L square, where V is having LT to the power minus 1. ठीक है? So I'll cancel out this one. ये cancel कर दूंगा मैं. ठीक है? ये और ये. ठीक है? देखो 3 factors मैंने cancel कर दिए. Now if we see this thing properly, अभी यहाँ पे L raised to 1 है ना, it will get shift upwards. M raised to 1 into the square bracket. When L is shifted upwards, this will become L raised to minus 1. ठीक है? So T raised to minus 1, when it is shifted upwards, that will become T raised to plus 1. So T raised to minus 2 plus 1. कितना होगा? T raised to minus 1. So this is the dimensional formula of what? This is the dimensional formula of what? एक सेकेंड, इतना तो हमें पता चल गया कि क्या है ये. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आएगा बताओ मुझे. So that can be written as, you can write here
that is m raised to 1, l raised to -1, t raised to -1. ठीक है, and we are going to bifurcate like this. ऐसे इसको bifurcate करेंगे. Now dimensional equation of coefficient of viscosity. ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं. So that can be written as into the square bracket eta को रखेंगे, then this is equalizing with the dimensional formula of coefficient of viscosity. So this is nothing but dimensional equation. ठीक है, चलो. Now I'll bifurcate this one. यहां तक bifurcate कर लेता हूं, फिर इधर से ऐसे. ठीक है, so here into this space I'm going to write the dimensions. ठीक है, dimensions of coefficient of viscosity. ठीक है, so उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to just write the dimensional नहीं, dimensional formula यहाँ पे नहीं लिखते हैं, but still we are going to highlight that dimensions of eta, coefficient of viscosity, that is, ठीक है, 1 in mass -1 in length -1 in time. ठीक है, so these are the things which we are going to highlight as a क्या dimensions of coefficient of viscosity. So is it clear my dear kids? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now we are going to see dimensional analysis of a physical quantity. ठीक है, dimensional analysis of a physical quantity. ठीक है, चलो ये हमने एनालिसिस देखना है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू मेक ओवर द डायमेंशनल एनालिसिस. ये बेसिकली क्या है? वी आर गोइंग टू एनालाइज द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को कैसे एनालाइज किया जाता है. तो डायमेंशंस को कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का 3 पॉइंट्स में एनालाइज किया जाता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन का हमें डिग्री ऑफ करेक्टनेस कितना है, तो हम किससे करते हैं? थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस. सो वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल्स लेटर ऑन आफ्टर सीइंग दीस 3 पॉइंट्स. ठीक है, डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट वी आर मेकिंग. तो हमने फर्स्ट पॉइंट कर दिया. ठीक है, सो द सेकंड पॉइंट इज टू convert one system of units to another system of units. बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों. You know what? We are converting one system of units to another system of unit. ये एक तरीका है किसी भी क्वांटिटी का मतलब डायमेंशंस को एनालाइज करना. ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल एमकेएस से मैंने सीजीएस में कर लिया, मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड्स, ये एक सिस्टम है ऑफ यूनिट्स का, एंड सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, दिस इज अनदर सिस्टम. तो हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया. तो भी से फॉर एग्जांपल 1 मीटर को मैंने कैसे लिखना है? सो 1 मीटर कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ, अगर सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, तो ये कैसे करते हैं? उसका एक प्रोसीजर है. वी आर गोइंग टू फॉलो दैट. आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रोसीजर वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इजीली. सो दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस पॉइंट. ठीक है, चलो
तो एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग इन डिटेल. सिंपली वी आर सीइंग द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को देखेंगे कि कैसे एनालिसिस को लिखा गया है. नाउ टू एस्टैब्लिश the relation among various physical quantities, ठीक है. what do you mean by this? Actually, you know, my dear kids, जब भी हम लिखते हैं F is equals to ma लिखते हैं, so this formula is correct or not, कि ऐसे लिखना ये सही है या नहीं. हम क्यों ऐसे नहीं लिख सकते F is equals to ma square, या F is equals to m by a square, या F is equals to m by a, या F by a is equals to m. Why can't we write like this? मतलब ये तो ठीक है चलो, लेकिन ये आपको देखो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. लेकिन ये सही होने के बावजूद वी कैन राइट मैथमेटिकली लाइक दिस. कैसे? F by a is equals to m. बट एग्जैक्टली वी कांट राइट लाइक दिस. हम ऐसे लिख नहीं सकते, हमको प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना है. F is equals to ma. तो ऐसे ही लिखना है. Why we should write like this? When we are writing F is equals to ma, why we should write like this? When this question arrives into your brain, into your mind, okay, अगर ये क्वेश्चन अराइव होता है, ठीक है, तो तब आपको ये वाला थर्ड पॉइंट का एनालिसिस करना पड़ेगा. By doing this, you will come to know that why we are using that formula into proper that format. उसी फॉर्मेट में हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं. See here, F is equals to m cube a raised to 5. ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? The reason is we are having a proper way to establish a formula, to establish a relation between force as well as mass and acceleration. ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे इन डिटेल. ये चीज पता चल गया हमको, ठीक है. Now my dear kids, apart from this, फर्स्ट पॉइंट का मैंने बहुत कम एक्सप्लेनेशन किया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. मतलब होता क्या है बेसिकली, व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेक एन इक्वेशन या फिजिकल्स टू ma ले लिया आपने, तो दोनों इक्वल हैं, इसको फर्स्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, सो हाउ इट इज इक्वल? बाय द नंबर. तो हो सकता है कि बाय द नंबर ये दोनों अलग अलग हो. सर दोनों कैसे अलग अलग हो सकते हैं? बिकॉज व्हेनेवर वी गो फॉर द मैथमेटिक्स, LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है सर. सो बाय द नंबर दिस इज करेक्ट इन मैथमेटिक्स. ओके, और ये फॉर्मूला भी वैसा ही है, क्योंकि 1 टाइम्स ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 1 टाइम्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये तो देखो यहाँ पे 1 and 1 both are equal, so you can say that this equation is physically correct है. ठीक है, physically correct. but dimensionally, फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला क्या डालते हो? mlt to the power -2. मास का क्या करते हो? m. एक्सेलरेशन का lt to the power -2. so दोनों का प्रोडक्ट किया, you'll get the same thing. ठीक है ना? this is dimensionally correct. and this is physically correct क्योंकि 1 times of mass and acceleration यहाँ पे ऊपर बोला गया. we are not writing in terms of dimensions. and फोर्स की क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है, this is 1 times of dimensions. so 1 times of force is equals to 1 times of product of mass and acceleration. so this is physically correct and this is dimensionally correct. तो दोनों एक तरीके से करेक्ट हो गया. but this will be not the case with every equation. for example, you can see here v is equals to u plus at. so this is kinematic first equation. ठीक है, तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, इट इज पर्टेनिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, सो v is nothing but final velocity, u is nothing but initial velocity, a is nothing but acceleration, and t is nothing but time. so v is lt to the power -1. so u is nothing but lt to the power -1. so acceleration lt to the power -2. small t is representing its dimension with a capital T. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइड में
क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी वैसे ही लिख दिया मैंने. यू कैन सी हियर. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एज वेल एज दिस वन. ठीक. So LT to the power minus 1 plus, so LT to the power minus 2 T raised to 1. तो ये कितना हो जाएगा? LT to the power minus 1. Now see here, इसके सामने कितना है? 1 है, और इसके सामने कितना है? 1 है. So 1 plus 1, 2. So 2 times of LT to the power minus 1 is equals to LT to the power minus 1, 1 times. देखो यहाँ पे 1 times and 2 times. अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, so this will become 1 is equals to 2. क्या ये पॉसिबल है? Actually, mathematically, this is not possible. But we are simply what we are doing. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं. क्या? 1 is equals to 2 into 1. मतलब ये 1 इस 1 को इक्वल है. But we are making 2 times of 1. क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस बनाना है. बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कहते हैं इसको. दिस इज द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन. ठीक है सर, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च वर्क ऑफ द, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, कि वो इक्वेशन को, वो वैल्यूज को बैलेंस बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट लेना पड़ता है. ओके, एंड दिस 2 इज गेट इंक्लूडेड विद द इक्वल साइन. तब क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 2 था ना, 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, है ना. लेकिन दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज इंडिकेटिंग इक्वल्स टू एंड 2 साइन. ठीक है, तो तब हम क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज, 2 इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है ना, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं. दिस इक्वेशन मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट. ये देखो यहाँ पे, दिस इक्वेशन इज मे नॉट बी फिजिकली नॉट करेक्ट. मतलब फिजिकली ये रॉन्ग है. 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये तो मैथमेटिकली हमको पता है, बट स्टिल वी आर राइटिंग दैट एंड वी आर सेइंग दैट दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट. ठीक है, बट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ये LT टू द पावर माइनस 1 है, LT टू द पावर माइनस 1 है. लेकिन फिजिकली नॉट करेक्ट रहने के बावजूद वी नीड टू टेक दैट प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू. 2 की बजाय अगर इफ यू टेक 3, दैट विल बी wrong equation. Wrong equation is different and the equation is physically not correct is different. Physically not correct क्यों? क्योंकि 1 is equals to 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना. But if it comes instead of 1 is equals to 2, 1 is equals to 3 आया, तब तो ये equation ही wrong है. This equation is not correct. First of all, this is physically not correct. Okay, and the equation is wrong. You cannot call this equation as correct. But this equation may be dimensionally correct. Dimensionally correct हो सकता है. मेरी बात क्लियरली समझ में आई? इसको कैसे, अगर 1 is equals to 3 लाना है तो कैसे करेंगे हम लोग? Here I will show with an example. इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा. You can see. Okay, so V is equals to U plus 280. ठीक है, you can see मैंने मॉडिफाई किया इक्वेशन को. V is equals to U plus 80 actually it is. But when you write that LT to the power minus 1, LT to the power minus 1 plus 2 times of LT to the power minus 1. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? You can see here LT to the power minus 1 is equals to 1 times. तो 1 times 2 times कितना हुआ? 3 times of LT to the power minus 1. This equation is dimensionally correct. ये dimensionally correct equation है क्योंकि इसके dimensions और यहाँ पे 1 times of dimensions are equal, but 1 is not equals to 3. Okay, basically हमने proportionality constant after making research work, number of readings लेने के बाद, बहुत सारे experiment, बहुत मतलब we made experiment several times, then we came to the conclusion that the fitting constant at the proportionality constant place, मतलब proportionality का constant है ना, उस place में वहां पे befitting constant का value कौन सा fit करता था? It was 2, not 3 और 2 छोड़ के कोई और. अगर 1 भी लोगे तो वो गलत है. ठीक है, so it means that this equation is wrong equation. ये आपका wrong equation है. Okay, but if it comes to this is right equation, ये आपका equation correct है and ये equation गलत हो जाएगा. This equation is physically wrong and also wrong equation but dimensionally correct. Is it clear my dear kids?
तो यहाँ पे 3 के बजाय 5 आ जाए या 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये गलत हो जाएगा। सर अगर ऐसा आ जाए तो 1 times of LT to the power minus 1, 1 times of LT। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इक्वेशन। ये बात क्लियरली आप समझ लो, ठीक है। सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि तीनों पॉइंट्स को लेके कैसे इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू मेक टू चेक द, क्या था फर्स्ट पॉइंट हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। टू check the correctness of an equation, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन बोला गया उन्होंने, ठीक है। एंड आई शोन यू ऑलरेडी, अभी मैंने आपको बता दिया था, तो एक एक करके ले लेते हैं। सो वी विल बी हैविंग इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है बेसिकली बताओ आप। सो दिस इज कैरिंग व्हाट यू नो, it is carrying LHS as well as RHS, दो चीजें होते हैं, ओके, इन मैथमेटिक्स, ठीक। एंड दिस इज राइट इक्वेशन, जब ये चीज होता है तभी राइट इक्वेशन होता है। बट फिजिक्स में थोड़ा सा अलग होता है, फिजिक्स विल बी हैविंग डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व विद द एग्जांपल्स, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। So that is force is equals to mass into acceleration, ठीक है। So force will be having dimensional formula, simple है, mlt to the power minus 2 is equals to mass का आपका कैपिटल M है, acceleration का lt to the power minus 2। So when you make a product of these things, क्या आएगा आपको बताओ, mlt to the power minus 2, ठीक है, 1 times, and mlt to the power minus 2 1 times। तो अगर मैं इस पॉइंट पे एट द 1 इफ आई मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज द प्रोपोर्शन इज इक्वल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है ना। तो तब क्या होगा, वट एवर यू आर चेंजिंग इनटू द राइट हैंड साइड, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मास तो कांस्टेंट है इसमें, वेरिएबल कौन सा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। वट एवर यू आर मेकिंग अ वेरिएशन इनटू द एक्सेलरेशन, देयर विल बी अ चेंज इनटू फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर आपने इंक्रीज इन वेलोसिटी किया या डिक्रीज इन वेलोसिटी किया, डायरेक्टली इट विल बी गोइंग टू इंपैक्ट टू द फोर्स, ठीक है, मतलब उतना आपने फोर्स को लगाया, ठीक, ये चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस वन, वन ऑन द, one on the right hand side as well as one on the left hand side is indicating. So these things, you know, simply shows that equal number on the left hand side as well as right hand side, and we can say that physically जो number है left hand side में वो 1 है और right hand side में भी 1 है, so both are physically correct। so मतलब दोनों same है। so when you say that, we can say the equation is physically correct, physically correct, ठीक है। physically correct means वैल्यू तो सेम है एंड द इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशंस, देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, सो द डायमेंशंस आर करेक्ट on LHS as well as and on RHS। so dimensions are correct means
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वट एवर द डायमेंशंस आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द सेम डायमेंशंस आर ऑन द राइट हैंड साइड. So we can say that this equation is dimensionally correct equation. ठीक है, क्योंकि क्योंकि डायमेंशंस क्या है, इक्वल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल वी टुक. हमने एक एग्जांपल को लिया. ठीक है, now I'm going to take a different example. So we took a quantity like force which is carrying equal proportion both on left hand side as well as right hand side. Now I'm going to take the second example. मैं दूसरा example लेने की कोशिश करूंगा, because with the second example I'm going to take kinematic equation. ठीक है, काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन लूंगा. ये काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? So it will represents the formula called V is equals to U plus AT. ठीक है, where V is the final velocity. ठीक, and U is the initial velocity. ये final और initial adjectives है ना, it doesn't matter. Basically हम लोग किसको highlight कर रहे हैं यहाँ पे? Velocity को highlight कर रहे हैं. And A is the acceleration. ठीक है, it is getting product with the time factor. ठीक, ये चीजें हैं सारे. So V will be written as LT to the power minus 1 is equals to initial velocity. It can be written as LT to the power minus 1 क्योंकि x by t रहेगा दोनों तरफ, plus acceleration का कैसे? Velocity by time. So it will be having x by t square. तो x का L फिर t square का t square. Then t square को ऊपर shift किया, LT to the power minus 2 हो जाएगा. For the time we can write dimension formula as t. तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? LT to the power minus 1, ठीक है, is equals to LT to the power minus 1. Now you can see here 1 times of LT to the power minus 1 on the left hand side. ठीक है, here 1 times, फिर plus का plus जैसे का तैसा. So t is get multiplied with the t raised to minus 2, that will become t raised to minus 1. So 1 times of LT to the power minus 1. ठीक है, so 1 plus 1, that will becomes what? 2 times of LT to the power minus 1 and 1 times of LT to the power minus 1. ठीक है, so if you see the dimensional formula of velocities, both is having same. So this equation we can say that dimensionally correct equation. Okay, dimensionally correct equation. But if you see the number को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगा, 1 as well as 2. So 1 will not be equals to 2. ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली क्या हो जाएगा? अगर आप इसको कीनली देखोगे, you will come to know that the number is not equal. So we can say that this equation is physically not correct equation. Physically ये correct नहीं है. ठीक है, but still this equation is correct. सर कैसे करेक्ट हो सकता है? If you see this equation mathematically wrong equation. mathematically wrong equation. ठीक है, even we are saying that physically not correct equation, but still we are saying that this equation is correct. मतलब ये जो 2 हमने वैल्यू लिया है, सो 2 को हमने कैसे लिखा है? यहाँ पे 2 into 1 लिखा, मतलब 1 is equals to 1 हो जाएगा. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 लिया है, we are taking with the equal sign, इसके साथ ले रहे हैं. मतलब कैसे? We are writing like this, 1 is equals to 2 into 1. तो 1 and 1 both are equal, but what we are doing here is equal sign as well as 2, we are taking it as a proportionality sign. हमने कैसे लिया इसको proportionality sign ऐसे लिखा. ठीक है, और इस proportionality से जब हम रिमूव करेंगे किसी भी इक्वेशन से, whenever we are removing the 1 is proportional to 1, so whenever we are removing this proportionality sign, we are getting the constant. ठीक है, is equals to k करके. ठीक है, what we are getting is equals to, I will show with the different color ताकि आपको highlight हो सके वो चीज, is equals to k. मतलब ये जो है ना
प्रोपोर्शनैलिटी वी आर रिमूविंग विद द इज इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट साइन, और ये कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। इनटू दिस इक्वेशन इट इज कमिंग 2, दूसरे इक्वेशन में दूसरा आएगा वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि प्रोपोर्शन इक्वल हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या ना हो, इट डजंट मैटर, बट स्टिल यू कैन राइट द इक्वेशन एज अ करेक्ट इक्वेशन, कि ये इक्वेशन को हम करेक्ट इक्वेशन कह सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अनदर थिंग माय डियर किड्स, क्या कि आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 मैंने लिखा, अभी इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिखूंगा। सी हियर वी टुक दिस इक्वेशन एज अ काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं ऐसे लिखूं v इज इक्वल टू u प्लस 5u बाय 280, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी v lt टू द पावर -1 इज इक्वल टू u का lt टू द पावर -1 प्लस 5u बाय 2 टाइम्स lt to the power -2 into t, this is 1 times and this is 1 times, ठीक है। अभी देखो बच्चों, what we are going to write, 1 times of lt to the power -1 plus, now you are going to multiply 2, इधर 2 को मैंने इधर multiply करा, ठीक है, and 5 will be here and lt to the power -2 into t can be written as lt to the power -1, so whole divided by 2, ठीक है। सो अभी क्या करोगे, 5 + 2 7 आ जाएगा, है ना। 7 को बाहर निकालोगे, 2 को भी बाहर निकालोगे, एंड lt to the power -1 as it is, so 1 times of lt to the power -1 as it is, मतलब the dimensional formula of velocity and the dimensional formula of velocity both are, ठीक है। ये तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। बट दिस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 7/2 हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 7/2, सो दिस इक्वेशन is not physically correct, physically not correct equation, ठीक है। ये तो पता चल ही गया सर, तभी भी हमने देखा था कि वहां पे 2 आया था, और वो इक्वेशन देखो बच्चों, देखो यहाँ पे दिस इक्वेशन वाज करेक्ट, इक्वेशन वाज करेक्ट इवन दो 1 is equals to 2 आया तो, बट हियर इन दिस केस व्हेन इट इज कमिंग 1 is equals to 7/2, हमें कांस्टेंट कौन सा चाहिए था इस प्लेस पे, वी वर एक्चुअली हैविंग, पीछे देखा था तो 2 था वहां पे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, सो द कांस्टेंट वैल्यू इट इज नॉट कमिंग 2, 2 नहीं आ रहा है, 7/2 आ रहा है, इट मींस दैट दिस इक्वेशन इज रॉन्ग इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग इक्वेशन, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन गलत है, हम ये चीज यूज नहीं कर सकते टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो हमें सॉल्व करना है तो यही यूज करना पड़ेगा। इवन इफ इट इज कमिंग 1 is equals to 2 proportion, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 is equals to 7/2 proportion आ रहा है, कहाँ पे इस केस में, इसीलिए इक्वेशन रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा एंड दिस इज करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। सो माय डियर किड्स, सर ये चीज तो पता चल गया, 1 is correct and the 1 is wrong, but who are deciding that कि 1 is equals to 2 ही आएगा इक्वेशन में, you know my dear kids, after long research, after taking several examples, ठीक है, okay, scholars will decide that कि जो भी स्कॉलर रहता है इस क्या कहते हैं इस कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, he will give several examples, he will make several researches होने के बाद several examples सेमिनार में लेगा, उसके सामने बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे रहेंगे and they will question every time whenever he is making a seminar, तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि नहीं, आपने जो भी लिया है कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज करेक्ट, सो k is equals to 2 is correct, k is not equals to 7/2, या कोई और k is equals to 3 भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, k is equals to 1 भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, लेकिन ये करेक्ट है। You have to prove that as a scholar when you are giving a seminar over this particular concept of v is equals to u plus 80, ठीक है। So this is one example I gave in front of you to check the correctness of a physical quantity। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों, ओके। सो विल मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू मेक, हम दूसरे पॉइंट को जाएंगे, एंड व्हाट इज दैट सेकेंड पॉइंट, आई विल यूज रेड कलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक वन, ठीक है।
So conversion of one system of units to another system of units. ठीक है. So this is second point. Second point of what, my dear kids? Second point of डायमेंशनल एनालिसिस. तो इसको प्रॉपर तरीके से चीजों को देखेंगे हम लोग. फाइन. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी राइट द फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला इनटू जनरल टर्म्स. ठीक है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी यू आर गोइंग टू symbolize with a symbol called q. ठीक है. q करके मैंने रखा. Then this will be expressed in terms of nu. ठीक है. ये n क्या है? n is nothing but numerical value. ये आपका एक numerical value रहता है. And what is u? This is a standard unit. ठीक है. So this standard unit is, my dear kids, this will be going to vary from place to place. मतलब एक particular portion of area into particular nations एक particular standard units use किया जाता है. And when you go to different countries, when you go to different portion of the countries, they are using different units. लेकिन the local units will not be used into this conversion of one system of units to another system of units. So basically whenever you are converting, you need to have a proper structure, proper procedure to convert from one system of units to another system of units, because it should be accepted internationally उसको accept करना पड़ेगा. ठीक है ना. So बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to have. तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे चीजों को कि कैसे कन्वर्जन करना है. एंड यू ऑल नो माय बच्चों, वी गॉन थ्रू द सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. उसमें आपको पता है एमकेएस यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स, एफपीएस यूनिट्स एज वेल एज एसआई यूनिट्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमने देखे हैं. ठीक है. सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एमकेएस टू सीजीएस. ठीक है. हम लोग एमकेएस टू सीजीएस. सर एमकेएस टू सीजीएस ही क्यों सर? because my बच्चों this MKS is this is very much nearer to SI. तो कोई भी आपका यूनिट रहेगा, क्योंकि बेसिकली पूरी दुनिया में SI ही चलता है. एंड when you compare MKS to the SI, both will be very much having similarity. So these two units are also called as sisterly units. इसको sisterly units भी बोलते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे units हैं. ठीक है. थोड़ा बहुत symbolize अलग अलग होंगे. And when you're converting to other units, it means that you're bringing that particular quantity, you're sending that particular quantity for the commerce to different section of the countries. तो दूसरे कंट्रीज को आप उसके अलग अलग सेक्शंस में भेजोगे तो वो लोग अपना सिस्टम अडॉप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसआई. ठीक है ना. तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर यूजिंग वन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. we are using the point of dimensional analysis of physical quantity. ठीक है. So I'll take as an example, first example of or on force. ठीक है. force का क्या करेंगे हम लोग? we are going to convert MKS to CGS. ठीक है. तो हमने इसको क्या करना है? MKS to CGS करना है. So basically force मैंने ले लिया and the dimensional formula of force क्या है? We all know that वो है आपका ml t to the power minus 2. And the general formula of quantity, ठीक है, वो क्या है बताओ आप? That is m raised to a, l raised to b, t raised to c. ठीक है. So when you write both, ठीक है, दोनों इसको 1 बोल लो और इसको 2 बोल लो. ठीक है. From 1 and 2.
वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट m raised to a, l raised to b, t raised to c. This is equals to m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. ठीक है, तो इसको आप क्या कर रहे हो, you are simply equalizing that. By this, what it is implicating, a is equals to 1, b is equals to 1, and c is equals to -2. Wait, तो c is equals to क्या दिखा हमें, -2 दिखा, ठीक है. So as I said that, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हो, q is equals to nu टर्म्स में लिखते हो. And when you are writing that you are going to convert from mks to cgs, तो किसी भी क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हो, q1 in terms of q2, ठीक है ना. तो आपको q2 टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना, मतलब cgs में एक्सप्रेस करना है. ऑलरेडी उन्होंने mks में दे रखा है, फाइन. सो mks में क्या दे रखा है, ऑफ द फोर्स. फॉर द फोर्स वी नो द यूनिट्स का नेम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना. और इसका सिस्टरली यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है. सो यू शुड कन्वर्ट बेसिकली, क्या ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वेट, यू आर गोइंग टू मेक हियर इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच इनटू CGS सिस्टम, ठीक है, यही चीज आपका क्वेश्चन है. तो चलो देखते हैं, फाइन. एंड सो 1 न्यूटन CGS में द यूनिट ऑफ द फोर्स इज क्या है, CGS में है डाइन्स, ठीक है. तो आपको जब भी आप वैल्यू लिखोगे इनटू CGS सिस्टम ऑफ द फोर्स, you need to write CGS unit of the force is as dynes, ठीक है. So Q1 can be written as N1 U1 is equals to N2 U2. So N1 is here, N1 यहाँ पे क्या है, N1 is 1 न्यूटन है, ठीक है. एंड व्हाट इज N2, N2 वैल्यू फाइंड करना है कितना है. एंड व्हाट इज U1, U1 इज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ MKS, ठीक है, जिसको आप न्यूटन कह रहे हो. सो न्यूटन इज U1. एंड व्हाट इज U2, U2 इज नथिंग बट CGS, दैट इज डाइन्स, ठीक है, ये आपका डाइन्स है. चलो, सो वी आर गोइंग टू बाइफरगेट द प्लेस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए. ओके, नाउ यहाँ पे ऐसे स्पेस बनाएंगे ताकि थोड़ा सा इजीनेस फील हो हमको. ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है. तो वो कैसे करेंगे, यू कैन सी हियर, N1 को ऐसे ही लिखेंगे, एंड U1 आई एम गोइंग टू राइट एज इट इज, एंड U2 आई एम गोइंग टू शिफ्ट हियर. सो हमें क्या फाइंड करना है, N2 वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. सो N2 इज इक्वल्स टू N1 क्या है, दिस इज 1, एंड U1 क्या है, MKS, मींस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, इन टर्म्स ऑफ दिस MKS, ठीक है. तो अभी MLT टू द पावर 2 - 2, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द क्वांटिटी MLT टू द पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ क्या है, MKS है, ठीक, डिवाइडेड बाय, एंड इट शुड बी रिटन एज M1 L1 T1, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे 1 और 1 आएगा, ठीक है. एंड द डाउनवर्ड्स इज M2 LT टू द पावर L2 एज वेल एज T2 रेज टू -2, ठीक है. तो यहाँ पे भी 1 और 1 है, एंड दिस शुड बी CGS. तो अभी करना क्या है बच्चों, पता है, यू नो व्हाट वी नीड टू डू. सो व्हाटएवर वी हैविंग डिनोमिनेटर, वी आर हैविंग डिनोमिनेटर, ठीक है. हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है ना,
उसके लिए हमको एक चीज करना पड़ेगा. So the denominator is in the CGS terms. It should be converted into MKS. मतलब जो भी आपको न्यूमरेटर में सिस्टम रहेगा उसी में आपको CGS को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैंसिल करना है. ठीक है. और N2 का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. जो भी न्यूमरेटर में सिस्टम रहेगा उसी टर्म्स में डिनोमिनेटर के यूनिट को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग. 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सेम टर्म आता है. नाउ यहां पे करते हैं m1. ठीक है. डिवाइडेड बाय m2. वी आर गोइंग टू राइट एवरी टर्म सेपरेटली रेज टू 1. ठीक है. L1 बाय L2 रेज टू 1. T1 by T2 raised to -2. We all know that all denominators are in CGS and all numerators in terms of क्या MKS. ठीक है. So N2 is equals to M1 किस में लिखेंगे? M1 we are going to write in terms of kg. तो इसका जो कहते हैं ना least unit into MKS system, that is 1 kg. ठीक है. फिर M2 में लीस्ट यूनिट क्या है? 1 ग्राम है. ठीक. रेज टू 1. अगेन L1 में क्या है? लीस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ into MKS system, that is 1 meter, and into CGS that is 1 centimeter. चलो. रेज टू 1. and T1 is in terms of MKS, that is 1 second, least unit of the time, and in terms of क्या बोलते हैं CGS, least value of the unit of the time into CGS is 1 second. तो हमने ये कितना भी लिख लो, 1s by 1s means simply 1s, 1s raised to -2 means क्या? Simply 1 second. तो कैंसिल हो ही गया. सेकंड कैंसिल होने के बाद 1 by 1 raised to -2. 1 raised to -2 क्या होता है? आप ऐसे लिखो, फिर बाद में ऐसे लिखो. ठीक है. जो भी है वेट, जो भी है कितना आएगा? सेम ही आएगा, 1 ही आएगा. 1 into multiplied with this quantity, that will remain same. ठीक है. So listen up my dear kids. Now N2 is equals to, ये 1 kg का मैं 1 kg जैसे का तैसा रखता हूं, because we are going to change the denominator value. Denominator value को मैं क्या करूंगा? kg में लिखूंगा. kg में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं? 10⁻³ ग्राम means 10⁻³ is nothing but k. Okay, so यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10⁻³ because 10⁻³ and 10⁻³ what it shows that 10⁻³ plus 3 is equals to 10⁻0, that is equals to 1. मतलब 1 ग्राम ही रहेगा. ठीक है. तो मैंने ऐसे इसको मॉडिफाई किया. ठीक. विद द सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा? मैं इसको निकाल लूंगा. मीटर सेम हो जाएगा. सो रेज टू 1 हो गया. यहाँ पे 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻² मीटर. ठीक है ना. सो रेज टू 1. तो इतना बच गया. नाउ आई कैन राइट लाइक दिस कि मैं 1 kg as well as 10⁻³ kg. ठीक है ना. सो यहाँ पे एक काम करते हैं, मीटर कैंसिल करते हैं. 1 by 10⁻². ठीक है. तो यहाँ पे kg भी कैंसिल हो गया. ठीक. सो हो क्या रहा है? 1 by 10⁻³ इंटू 1 by 10⁻². ठीक है. दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग द वन थिंग. ठीक है. N2 is equals to 1 by 10⁻⁵. ठीक है. ये चीज मिल रहा है. तो ऊपर भेजने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग 10⁵. N2 is equals to. ठीक है. सो N2 का वैल्यू तो हमें मिल गया. We got that 10⁵. But when you are writing particular value of 1 Newton, that is equals to 10⁵ डाइन्स तो पता है हमको ऑलरेडी. ठीक है. सो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मार्क आउट कर सकते हैं.
ठीक है, इसको मार्कआउट करेंगे और फोकस करेंगे इसको वैल्यू को। ठीक, सो वी डिड द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। फाइन, एंड विल मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों फॉर द क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं। मैंने पहला वाला बहुत ही लेंथी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से किया, एंड अगेन वी आर टेकिंग, वेट, again we are taking conversion of one system of units to another system of units। ठीक है, we are going to make this as a short example, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल बनाएंगे इसको। ठीक है, पहला वाला तो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। सो सेकंड एग्जाम्पल where I am going to take a quantity of what, gravitational constant। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने एग्जांपल लिया। चलो, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने लिया, एंड वी आर गोइंग टू डू वन थिंग। इसका पर्टेनिंग फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, पर्टेनिंग फॉर्मूला, सो दैट वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले अगर वो चीज फाइंड कर लेते हैं तो वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस थिंग। ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो द कन्वर्जन विल बी MKS टू CGS। ठीक है, सिंपल है। सो पर्टेनिंग फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, है ना। तो हमें ये चीज फाइंड करना है, means we need to take the dimensional formula of capital G। ठीक है, so we are going to write capital G is equals to F into D square M1, where condition will be M1 is equals to M2। मतलब दोनों मिला के क्या हो जाएगा पता है, दोनों मिला के M हो जाएगा। मतलब M1 is equals to M, M2 is equals to M। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक, so इसका मतलब ये हो गया M into M, M square हो जाएगा। so you can write M square downwards। तो यहाँ पे आप डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का MLT टू द पावर -2 लिखोगे, फिर इसका L स्क्वायर लिखोगे, एंड मास का M स्क्वायर लिखोगे। सो व्हेन यू शिफ्ट इट अपवर्ड्स कितना आएगा, M रेज टू -1 आएगा, फिर ये L क्यूब आ जाएगा, T रेज टू -2 रहेगा। ठीक है ना, सो इज इट क्लियर, या। सो ये आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कन्वर्जन। ठीक है, MKS से CGS। ठीक, Q1 इज इक्वल्स टू Q2। तो Q1 क्या था, Q1 आपका है, वी आर गोइंग टू सी दैट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, यहां पे देख लो बच्चों, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ठीक, तो देखो बच्चों, when we are writing the value of N1, तो N1 क्या है बताओ मुझे। N1 is equals to, in terms of MKS, the value of G। G का वैल्यू क्या है बताओ, 6.67 into 10 to the power -11। ठीक है, तो आपका जो N1 का वैल्यू आएगा in terms of MKS, you are going to write 6.67 into 10 to the power -11। ठीक है, and what is U1? U1 is nothing but Newton meter square per kg square। What about U2? U2 is nothing but न्यूटन का क्या करोगे, न्यूटन का आप कन्वर्जन करोगे। ठीक है ना, न्यूटन 1 न्यूटन, न्यूटन इन टर्म्स ऑफ डाइन्स तभी किया था हमने, डाइन। ठीक है, मीटर का क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर केजी स्क्वायर का क्या बनेगा, ग्राम स्क्वायर, है ना। सो दिस इज ग्राम स्क्वायर। So this will be the thing
और व्हाट अबाउट n2? n2 का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। सो चलो देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सो माय डियर किड्स लिसन, तो n1 का मैंने लिख डाला 6 पॉइंट, नहीं, एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व दिस थिंग। सो n1 इंटू u1 बाई u2 इज इक्वल्स टू n2, ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि मतलब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं वेल एस्टैब्लिश तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ so that we can easily solve these things properly, ठीक है। चलो मैंने बना लिया स्पेस एंड थोड़ा सा ब्लू कलर यूज करते हैं यहाँ पे। सो n2 is equals to n1 into u1 by u2 where n1 is 6.67 into 10 to the power minus 11 and u1 is in terms of, ये क्या है आपका mks है, ठीक है, और ये क्या है in terms of cgs है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। So we need to convert this CGS in terms of MKS, इसको MKS में हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो पाए, अगर कैंसिल होगा तभी हमको वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ N2, ठीक है। चलो वी आर गोइंग टू राइट, कैसे, ब्रैकेट डायरेक्टली लिख लेते हैं M1 बाय M2, ठीक है, L1 बाय L2, T1 बाय T2, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू रेज द पावर्स, हम पावर्स को देखो यहाँ पे कितना है -1, तो इसके ऊपर -1 लिख लेते हैं, ठीक है, एंड रेज टू 3, रेज टू -2, ठीक है। हमने बहुत ही क्लियर तरीके से लिख लिया यहाँ पे -1, ठीक, सिंपल। नाउ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो m1 क्या है, इट इज इन टर्म्स ऑफ kg, सो आपको लीस्ट यूनिट लिखना है MKS का, तो आप क्या करोगे 1 kg, ठीक है ना, रेज टू -1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा 1 ग्राम रहेगा, है ना। सो इतना लिखा, देन L1 का क्या है 1 मीटर, ठीक है ना, रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक, एंड T1 बाय T2 दैट इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, मतलब सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, रेज टू -2, तो 1 बनेगा वो बस, ठीक है। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड kg का तो एज इट इज रखेंगे, फाइन, and so if you want to write this one into the denominator gram as a kilogram, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, if this is kg it should be 10 raised to -3, है ना, raised to -1, and यहाँ पे 1 meter divided by, यहाँ पे centimeter means you should convert in terms of meter, तो 3 लिख दिया आपने, ठीक है। सो नाउ लिसन माय डियर किड्स, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इफ यू शिफ्ट kg kg कैंसिल करो, मीटर मीटर कैंसिल करो, ठीक है, अभी मेक शिफ्ट ऑफ दैट, उसका आप शिफ्ट करो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, ऊपर भेजा आपने, कितना आया इंटू 10 टू द पावर 3, फिर 10 टू द पावर रेस टू -1 है, मतलब 10 रेस टू -3 आएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आफ्टर शिफ्टिंग हियर, वेट, after this one shifting here this will become 10 raised to 3, तो 10 raised to 3 raised to -1, 10 raised to -3 बन जाएगा ये, ठीक है। नाउ 10 रेज टू -2 ऊपर शिफ्ट करेगा, क्या बनेगा 10 रेज टू 2 बनेगा, 10 रेज टू 2 एज वेल एज 3, कितना 2 3 जा 6, 10 रेज टू 6। नाउ लिसन हियर माय डियर किड्स, आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 -3 -14 हो जाएगा, -14 प्लस 6 कितना होगा, दिस विल बी रिटन एज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट n2, मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों, ओके। सो द वैल्यू ऑफ n2 इज कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आपका वैल्यू है n2 का, ठीक है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, इफ यू पीपल्स आर गेटिंग इट मींस दैट यू आर राइट, ठीक है। n2 का वैल्यू फाइंड कर लिया,
नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द कन्वर्जन टर्म्स, आपको कन्वर्जन टर्म्स को लिखना है कैसे? यू आर राइटिंग दैट MKS टू CGS लिखना है, ठीक है? तो आपने लिखा MKS में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. सो दिस इज योर व्हाट कन्वर्जन, ये आपका कन्वर्जन था एंड हमको यही चीज सॉल्व करना था, ठीक है? सो दिस इज द राइट आंसर माय डियर किड्स. ओके, सो 2 points of dimensional analysis we came to know by taking several examples, है ना? अभी जो थर्ड पॉइंट होगा, the third point is all about to establish the relation among various physical quantities, ठीक है? So we are going to make a third point my dear kids, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट क्या है? To establish the relation among various physical quantities, ठीक है? So in the beginning of the class I was discussing that कि हम किसी भी फॉर्मूला को अगर लिखना है कि प्रॉपर टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसको हम एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर तरीका क्या करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूंगा, आई विल टेक एन एग्जांपल, बेस्ड अपॉन दैट आई एम गोइंग टू write a definition of write a elaboration of this particular point. इस पॉइंट का हम इलेबोरेशन करते हैं, ठीक है? तो एक हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं, F is equals to 1 by 2L अंडर रूट कैपिटल F डिवाइडेड बाय म्यू. सो वेयर F इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो इसको आपने फ्रीक्वेंसी बना लिया एंड L इज द लेंथ, ठीक है? ये आपका लेंथ है एंड कैपिटल F इज द फोर्स, ठीक है? फोर्स और यू कैन कॉल इन अदर टर्म्स टेंशन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? एंड म्यू, म्यू इज नथिंग बट, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है? इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? म्यू, MU म्यू, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट माय डियर किड्स मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? मास पर यूनिट लेंथ. सो दिस इज द क्वांटिटी कॉल्ड म्यू, है ना? तो अभी ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ओके, सो if you see it, if you see it, you'll come to know that there is a relation between left hand side as well as right hand side, ठीक है? अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से देखना चाहोगे, you will come to know that कि यहाँ पे हम एक चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या? That is F is equals to 1 by L into under root F by mu whole divided by 2. मतलब क्या है, अगर इस 2 को हम बाहर निकाल लें, सो विल कम टू नो दैट कि 1 by 2 into the bracket 1 by L, ठीक है ना, अंडर रूट F by mu, ठीक है? ऐसे लिखा. फिर what we came to know, 1 times of frequency is equals to half times of this quantity, ठीक है ना? तो हम किसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? टू दिस फैक्टर, इस फैक्टर को इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट दीस थिंग्स आर डिपिक्टिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दिस फैक्टर, ये क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 1 by 2 है. तो अभी हमें क्या करना है? वी नीड टू
कोरिलेट द अदर क्वांटिटीज, ठीक है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे ये तीनों को ऐसे ही टर्म में, मतलब ऐसे ही फॉर्मेट में लिखने के लिए फ्रीक्वेंसी से दिखाना पड़ेगा। मतलब we need to show the relation between frequency as well as these three terms, ठीक है। तो इसी को कैसे एस्टेब्लिश करना है, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। तो इससे एक हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दैट, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, सो हियर इज द बाइफर्गेशन मैं करने वाला हूं यहाँ पे, वेट, सी हियर, चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूं वैसे। So the elaboration of this point of third dimensional analysis, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। So if we know the factors, ठीक है, इसको कैसे elaborate करना है, if we know the factors on which a given physical quantity, a given physical quantity may depend, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा जाए, अगर हमको ये फैक्टर्स पता है, लेंथ, फोर्स एंड मास पर यूनिट लेंथ, फोर्स इन द सेंस ये टेंशन है आपका, ठीक है। तो इन तीनों क्वांटिटीज अगर हमको पता है, फाइन, एंड दीज थ्री क्वांटिटीज ओवर दीज थ्री फैक्टर्स, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच अ फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड, मतलब वी आर कॉलिंग दैट फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों है ना, इसको क्या बोला जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज, इसको बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर ये चीज पता है कि मतलब डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो अगर ये तीनों पता है तो हम कोई भी, मतलब नॉट कोई भी, सो इस क्वांटिटी से रिलेटेड हम लोग क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, मींस पर्टेनिंग टू फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग with the continuation of this elaboration of the statement. So we can find we can find a formula. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। We can find a formula relating the quantity with those factors, with those factors, मतलब अगर हमको इंडिविजुअली पता है कि फ्रीक्वेंसी से फोर्स, ठीक है, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ जुड़े हुए हैं, सो इसके साथ कनेक्टेड हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? विच फॉर्मूला इट इज दिस फॉर्मूला, यही है ना। तो अभी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट बाय टेकिंग पर्टेनिंग टू दिस फॉर्मूला, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स तो हम कंसीडर करने ही करने हैं, सिंपली टू शो दैट the dimensional analysis by making third point to establish the relation among various physical quantities. Various कौन से हैं, frequency, length, force and mu है। तो frequency is on the left hand side and other terms is on the right hand side. तो इन quantities के बीच में हम लोग क्या करेंगे, relation को establish करेंगे, ठीक। चलो, so we took an example, हमने example लिया। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन प्रॉपरली। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन, टेंशन माने फोर्स, टेंशन टी से सिंबलाइज करते हैं बट इट इज इक्वल्स टू एफ। सो लेंथ एल
of the string. ठीक है, means they are talking about the length also and the mass per unit length means mu of a string. तो तीन फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं on the right hand side. So frequency is f. ठीक है, तो चलो यहाँ पे बाइफर्केशन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमको इसको इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, so if you see this formula you'll come to know that कि frequency is proportional to क्या है, फोर्स वाली क्वांटिटी है विच इज रेजिंग पावर विथ ए एंड बाद में क्या है, वी नीड टू टेक एल रेज टू बी एंड म्यू रेज टू सी. तो ये आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो इफ यू टेक एल रेज टू ए एफ रेज टू बी कोई दिक्कत नहीं है, फाइन. बट वी आर गोइंग टू फर्दर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो for the frequency we know that f is equals to 1 by t. So 1 by t means, तो इसका आप क्या करोगे, you can write this as t raised to minus 1. ठीक है, so you can take this as t raised to minus 1. But one thing, इसको t raised to minus 1 को आपको कैसे लिखना पड़ेगा पता है, the dimensional formula. wait, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, यू शुड राइट m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू minus 1. ठीक है, व्हाट अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स का क्या है, m l t टू द पावर -1, मतलब m रेज टू 1 l रेज टू 1 t रेज टू -1. नाउ व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ. लेंथ का तो आप लोगों को सबको पता है कि that can be written as m raised to 0 l raised to 0, not l raised to 0, l raised to 1 and t raised to 0. So what about the dimensional formula of mu. mu क्या होता है, mu is nothing but mass per unit length. तो इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, m raised to 1 l raised to -1 t raised to 0. ठीक है, तो चलो यहां पे भी हमने क्या कर लिया, we took dimensional formula of the mass per unit length quantity. Now we are going to substitute the values. हम लोग values को substitute करेंगे, m raised to 0 l raised to 0 t raised to -1. This is the dimensional formula for what, for frequency. तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्योंकि सिंस हियर इज द प्रोडक्ट तीनों क्वांटिटीज में, तो तीनों क्वांटिटीज में अगर प्रोडक्ट है तो अगर आप सेपरेटली लिख के एक स्टेप एक्स्ट्रा भी बढ़ाते हो कोई दिक्कत नहीं वैसे. ठीक है, सी फॉर द फोर्स आप क्या करोगे, m l t to the power -1 and for the means you have to raise the power as a a. ठीक है, wait for a while. Listen up, my dear kids. Now mlt to the power -1 raised to a, this is, and this is for the force, right? और लेंथ के लिए आपका क्या रहेगा, m raised to 0 l raised to 1 t raised to 0. ठीक है, and for the mass per unit length आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m raised to 1 l raised to -1 t raised to 0. ठीक है, so what we are going to do here is हम लोग एक चीज करते हैं, रेज टू पावर विथ b एंड इस फैक्टर को रेज टू पावर विथ c. इफ यू सी हियर म्यू एंड l, तो मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया. नाउ सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट थिंग. तो m रेज टू 1 है, यहाँ पे l रेज टू 1 है. सो इफ यू सी दिस टर्म m रेज टू a l रेज टू a and t रेज टू -a. ठीक है, फॉर द फोर्स, and b into 0 that will become 0, मतलब m raised to 0 means 1. so यहाँ पे क्या बचेगा, l raised to 1 means 1 into b, so it can be written as l raised to b. तो t raised to 0 into b means simply 0, t raised to 0 is 1. fine, तो यहाँ पे देखो
c into 1, that can be written as m raised to c and l raised to minus c. So t raised to 0 into c is simply taken as 0. तो आप इसको इतना ही कर लो. And further, m raised to 0, l raised to 0, t raised to minus 1, this is taken as a convention in the LHS. ठीक है. तो अभी इन सारे चीजों को आप लोगों को क्या करना है, विद द सेम क्वांटिटी यू नीड टू एड अप. ठीक है. m raised to a है ना प्लस c, इसको हमने ऐसा ऐड करना है. एंड l raised to a माइनस c. ठीक है, इसको हमने ऐसा ऐड किया. as well as I think wait, l raised to b भी है यहाँ पे, l raised to b minus c. Fine. So we took like this, as well as t raised to minus a. Simple. So when you compare these powers, जैसे कि आपने लिया m raised to 0 is equals to m raised to a plus c. Fine. What this implicate? This implicates a plus c is equals to 0. ये वाला आपको इक्वेशन मिल गया. Now l raised to 0, this is you're equalizing with the term called l raised to a plus b minus c. What it implicates? It implicates a plus b minus c is equals to 0. ठीक है. Then t raised to minus 1. Wait. T raised to minus 1 and a wait. T raised to minus 1 and wait for a while, my dear kids. एक थोड़ा सा t raised to minus a. So these are the things. अभी एक चीज कर लेते हैं बच्चों. इज देयर एनी कंफ्यूजन और कोई गलती हमसे अगर हुई हो तो एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोग कहीं पे भी मिस्टेक ना कर पाए. ठीक है. तो हम लोगों ने वैल्यू तो सही ढंग से लिख लिया है एंड ये भी ठीक है. सो व्हाट अबाउट स्टूए? तो और कहीं पे टी का वैल्यू हमने कहीं पे मिस करा है या नहीं करा है, वी आर गोइंग टू सी दैट. वन थिंग, एक चीज यहाँ पे हमने गलती की है. once you see here, फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला -1 लिया था. इट शुड बी टेकन -2. ठीक है. एंड यहाँ पे कहाँ पे ओके, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको -2 को फिट करना है. अगेन दिस विल बिकम सी हियर. ऐसे गलतियां हो जाती हैं वैसे. सो दिस इज -2a. ठीक है. एंड यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेयर वी नीड टू राइट हियर, दिस इज -2a. चलो ठीक है. यू नो व्हाट, थोड़ा सा क्लमजीनेस कंफ्यूजन करवा देता है वैसे. सो यू कैन सिंपली मॉडिफाई इट. जो भी गलती है उसको करेक्शन करो. फाइन. सो दिस इज -2a. ठीक है. नाउ अभी इसको क्या करना है बच्चों, what this is implicating, -1 is equals to -2a. ठीक है. So what this indicates, हम थोड़ा अलग कलर यूज करके क्या करेंगे, we are going to calculate the values. ठीक है. इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे so that -2a is equals to -1. ठीक है ना. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. a is equals to 1/2. a is equals to 1/2. ठीक है. चलो हमने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ what we are going to see, if we substitute a value into this equation, ये वाले इक्वेशन में अगर हमने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या मिलेगा, a plus c is equals to 0, 1/2 plus c is equals to 0. So this can be written as c is equals to -1/2. ठीक है. So we got the value of c is equals to -1/2. Now when you write the value of c, यहाँ पे ये इक्वेशन को आप कौन सा वाला, this equation now. ठीक है. So simply to find out which value, to find out the value of b, है ना. तो थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज करते हैं so that a is equals to, we know that 1/2 है यहाँ पे. ठीक है. प्लस b as it is लिखते हैं. So -1/2 as it is लिखते हैं. ठीक. तो अभी क्या करते हैं बच्चों, what we are going to write, c is equals to minus of minus, that will become plus, क्योंकि c is equals to -2 है, -1/2 है.
सो इफ यू पुट हियर, सो माइनस ऑफ माइनस दिस विल बिकम प्लस, ये आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। सो 1/2 दैट बिकम्स 1. So b plus 1 is equals to 0, and if you are shifting that 1 on that side, अगर आप wait, मैं थोड़ा सा स्पेस अलग से यूज करूंगा. So इसी चीज को हम कहाँ पे करेंगे, we are going to see here. तो b is equals to -1. So मैंने यहाँ पे करा, ठीक है, b is equals to -1. Now we know the, ठीक है, हम लोग वैल्यूज जानते हैं, ठीक है. So we are going to write the formula. हम लोग फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सी हियर माय डियर किड्स, एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा. आई वांट टू मेक यू नोटिस वन थिंग माय डियर किड्स. वी हैव दिस फॉर्मूला, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ रेज टू ए का वैल्यू क्या है बताओ मुझे, दैट इज 1/2, ठीक है. एंड एल रेज टू बी का वैल्यू क्या है बताओ मुझे, -1, ठीक है. इनटू म्यू का वैल्यू क्या है बताओ मुझे, रेज टू सी. रेज टू सी क्या है, -1/2, ठीक है. चलो, तो अभी इसको एक प्रॉपर टर्म्स में लिखते हैं हम लोग. एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/L लिखा मैंने, माइनस एल रेज टू -1 का, ठीक है. तो इनटू द ब्रैकेट एफ रेज टू 1/2 लिखा मैंने, ठीक है. सो म्यू का क्या करते हैं, म्यू रेज टू -1/2, मतलब म्यू को नीचे लिया और 1/2 लिख डाला, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू शिफ्ट 1/2, टेक इट एज अ कॉमन, शिफ्ट इट ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. तो आपने एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, है ना. तो इसको क्या करोगे आप लोग, एफ बाय म्यू, ठीक. सो रेज टू व्हाट, रेज टू 1/2. सो 1/2 इज नथिंग बट ये आपका रूट है, क्या है, दिस इज योर रूट. तो रूट को आप क्या करोगे, 1/2 का आप रूट बनाओगे, है ना, ठीक. सो इतना आपने लिख डाला. नाउ इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इज इक्वल्स टू k इनटू 1/L इनटू f बाय अंडर रूट f बाय म्यू. तो यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, सो दिस इज द थ्योरेटिकल फॉर्मूला यू टुक, आपने ये फॉर्मूला बनाया, ओके. नाउ यू मेड दिस फॉर्मूला and how you're going to verify that this is correct. So when you find out the frequency into the string, ठीक है, समझो कि आपका जो वैल्यू आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वॉट एवर यू आर कैलकुलेटिंग, कितना आ रहा है पता है आपका, आपका आ रहा है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स, 50 हर्ट्ज आ रहा है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट. आपने ऐसा किया और किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, कितना आ रहा है वो, इट इज 50 हर्ट्ज. Say for example you are not taking constant, आपने constant नहीं लिया, but still you are using this formula, आपने formula को use किया, ठीक है. तो आपका experimental value क्या था, so experimental value जो आपने इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट किया था, it was 50 हर्ट्ज, लेकिन आपने formula use करा and the value came 100 हर्ट्ज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. So by substituting the value of tension, कहाँ पे, यहाँ पे force में, as well as mass per unit length as well as length, तो ये सभी values को substitute करने के बाद 100 हर्ट्ज आया, which is coming 2 times of the experimental value. ये क्या है आपका theoretical value, theoretical value. But what we need to do, अगर ये सही आना है, both should be same, experimental as well as theoretical value. Experimental value आपका कितना आ रहा है, it is coming, wait, I will take the red color, that is better. Experimental value कितना आ रहा है, it is coming 50 hertz and theoretical value it is coming 100 hertz. तो अभी इसको मुझे 50 लाना है, तो what we need to do, we need to do divided with the 2, है ना. तो आप 1/2 से डिवाइड करोगे 100 को, तो कितना आ रहा है, 2 1 जा 250 जा, ठीक है, मतलब 50 आया. नाउ theoretical value and experimental value both are equal, one and same. तो अभी मुझे क्या लेना पड़ेगा, constant is equals to 1/2 लेना पड़ेगा. So this unequal term,
लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, 1 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कांस्टेंट के बदले में, कौन सा कांस्टेंट के बदले में, सो दिस वैल्यू माय डियर किड्स, सो इसके बदले में मुझे क्या लेना पड़ेगा, वी नीड टू टेक 1/2, ठीक है। सो जब ये 1/2 लेंगे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेयर यू कैन राइट k इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप ऐसे करके क्या करोगे, यू विल बैलेंसिंग आउट द इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? So by this way, we are going to establish the perfect relation between LHS as well as RHS quantities. तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। So I think this is very much clear. We'll move to the next concept called principle of homogeneity. ठीक है, तो अब ये principle of homogeneity, टाइम बहुत हो गया बच्चों, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा पॉज करके, क्योंकि it is exceeding I think 1.5 hour of the class. तो बेसिकली मेरे 1 आवर के क्लासेस होते हैं, सो दिस इज 1.5 hour. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। सो वी नो दिस फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज दिस? काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन, ठीक है, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन। Now out of this kinematic second equation, when we see this left hand side, we'll come to know that S is nothing but length. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? लेंथ है। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ है, तो यहाँ पे आइदर इट मे बी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे। तो कितने टर्म्स हैं? दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, फाइन। तो अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली देखोगे, यू विल कम टू नो दैट ut विल बी हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, एंड हाफ at स्क्वायर विल बी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यही क्या है, these things means all the terms into this equation, सारे के सारे terms कौन से वाले equation में? into kinematic second equation. If you see this, you'll come to know that कि सारे के सारे terms में dimensions same है। तो if you read this, you'll come to know this principle states that the dimensions of all the terms in a physical expression should be same. मतलब सारे terms में, जो कि फिजिकल एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स हैं, उसमें डायमेंशंस क्या है? वन एंड सेम है, इक्वल है, ठीक है। सो वी विल गो विद द एग्जांपल माय डियर किड्स। मैंने एग्जांपल लिया, सो फिर से मैंने पॉज करके ये लिख डाला, सो टाइम वेस्ट नहीं होगा। एग्जांपल ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द वेलोसिटी v of a particle depends upon the time t according to the equation. जो भी यहाँ पे लिखा है, velocity of v of a particle depends on the time t according to the equation, जो भी है। So we are going to see this equation rather than going into कहानी कि ये उस पे डिपेंडेड है या वो उस पे डिपेंडेड है। We are not going to get into the कहानी of this, ठीक है। We are going to see the equation, v है यहाँ पे, a है, bt है, plus c by d plus t है। Write the dimensions of a, b, c and d। तो चलो बच्चों एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे सम कितनी जगह देख लो, वी आर हैविंग एट द 3 जगह, ठीक है। सो व्हेन वी आर राइटिंग v इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c बाय d प्लस t। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये as well as this one, these three will be having what? These three will be having same dimensional formula. V is equals to a is equals to bt is equals to c by d plus t, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला? हमको मिल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इतना, मतलब वी कैन इजीली रिजॉल्व दिस इक्वेशन, है ना। तो अभी देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज को और एक हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। व्हेन यू आर सीइंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म, ठीक है, सो d प्लस टी, मतलब यहाँ पे क्या है? सम है। सो इफ दिस इज t, दिस शुड बी t, मतलब d इज इक्वल्स टू t है। यहाँ पे जो t का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, वही d का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। सो व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग द डायमेंशंस ऑफ a, b, c एंड d, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमने तो ये d का वैल्यू यहाँ पे लिख डाला, फाइन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो d इज इक्वल्स टू, पहले ही हम लोग यहाँ पे लिख डालते हैं d इज इक्वल्स टू t,
So this is the dimensional formula for what? D. So अगर आपने पूछा है, किसने पूछा है कि the dimensions of D is क्या रहेगा? 1 in time. आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? ये आपका पहला वाला आंसर हो गया. Now V is equals to A. So this is equals to what? ये क्या implicate करता है? LT to the power minus 1 is equals to A. So you can simply say that कि आप dimensional formula of A क्या रहेगा? That is LT to the power minus 1 and the dimensions of A. ये क्या लिखोगे? Is 1 in length है ना? 1 in length है and minus 1 in time है. So these are the dimensions. ये आपके dimensions हैं. So I am using every time different color. ठीक है, अलग अलग टर्म्स को दिखाने के लिए. So एक तो मार्कआउट कर लेते हैं बच्चों, so that we should not get confused. दो चीजें हमने कर ली. One is we found the dimensions of the D as well as A. अभी BT और ये थर्ड टर्म का भी करना है. So BT is equals to V. Now BT is equals to LT to the power minus 1 और T का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? वो भी तो T रहेगा. यू आर गोइंग टू शिफ्ट इनटू द डिनोमिनेटर इनटू 1. ठीक है ना? सो अभी इसका क्या करोगे आप लोग? आप करोगे, है ना? सो यू आर गोइंग टू राइट LT टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय T. सो ऊपर भेजने के बाद क्या आएगा? दिस विल बिकम्स LT टू द पावर माइनस 2. सो यू कैन राइट डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ BT, ठीक है, इज वो क्या आएगा? मतलब BT इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? नहीं, BT इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ B फाइंड करना है, क्योंकि इंडिविजुअली बोला है उन्होंने. ऑफ B इज इक्वल्स टू, दैट कैन बी रिटन एज LT टू द पावर माइनस 2. तो 1 in length and minus 2 in time. Now as we all know that कि D का अगर T है तो T प्लस T 2T होता है, ठीक है ना? और C का क्या है वो चीज देख लेते हैं हम लोग, है ना? So we are going to write first of all the equation. एक काम करते हैं, वेट कीजिएगा. Okay, so C by D plus T is equals to LT to the power minus 1, है ना? So this can be written as LT to the wait, this can be written as C को जैसे का तैसा लिखते हैं and this can be written as 2T, है ना? 2T नहीं, yeah 2T. एंड वी ऑल नो दैट क्योंकि कैपिटल T प्लस कैपिटल T 2T बन जाएगा. दिस इज LT टू द पावर माइनस 1. तो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट विल नॉट बी एनीथिंग. तो T को इधर भेज दिया तो इट विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस एंड आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड T raised to 1 as well as T raised to minus 1, this will become 0. So C will be equals to L. Okay, so C is equals to L. So 1 in length. This is the dimension of C. Now, if you write the dimensions of the A, B, C and D, तो हम एक जगह बना के उसको लिख डालते हैं बच्चों, so that it should become easy to us to write that thing. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं. So I'm making a box of this where we are going to write the dimensions, है ना? तो dimensions को A is equals to कहाँ पे? It is here, LT to the power minus 1. ठीक है, then B is equals to, where is B? It is equals to LT to the power minus 2. ठीक है,
Now what is c is equals to, c कितना है, c it is simply कहाँ पे है वो, it is here. Okay, so this is the dimensional formula for c, as well as d is equals to कितना है, d is equals to it is here t, है ना. So this is the dimensional formula for what, for the d. So if you see, if you highlight these things, you'll come to know that everything is, we have done in a very correct way. ठीक है. So my dear kids, ये आपका क्या है, this is the answer, ये आपका आंसर है. ठीक. So how you felt about this video my dear kids, especially lecture 20, है ना. तो ये आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट करके मेरे YouTube चैनल पे बताइएगा at the lecture number 20. And this is the over of the units and measurements chapter. ये चैप्टर खत्म हो गया. मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स बुक के रेफरेंस में रख के I taught you everything. So next chapter will be on motion in a straight line. Third chapter बताऊंगा. As well as parallelly I'm going to run the lecturing from the class 12 also. मतलब क्लास 11 का एक वीडियो होगा और क्लास 12 का एक वीडियो होगा एवरी डे. ठीक है. तो 2 चैप्टर्स रन करूंगा मैं into my beta series of physics teaching. So if you like this video, please do like my video my dear kids, and comment it in my comment box of the YouTube channel. And अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आया है, you can share this video with your other college friends and ask them to subscribe. And I request everyone to subscribe my channel, Physics Indian Professor. So this is Chetan sir. Thank you for listening patiently up to the end. Okay. Bye bye and Jai Hind.